Okay, students, so now we are going to start mock interview for our student Susma, and this mock interview is for HL exam. Right, Susma? Yes, sir. So, Susma, there are two categories, design category and management training. Okay. So, Yes, in sir. which category did you get selected? Sir, in management training. Okay, management training. Yes, So, sir. did they ask you this choice or they just allotted your their self? No, sir, they have asked about it, like whether if we are interested in MT or DT. Okay. Okay, so let us start with your introduction. Okay, sir. So, thank you for giving me opportunity to introduce myself. So, my name is Sushma Singh. I'm from Uttar Pradesh district, Varanasi. I have done my schooling from West Bengal, Vidya Vikas High School. Sir, I have completed my graduation in Electronics and Communication Engineering from Institute of Engineering and Management, Kolkata, with a CGPA of 8.59. Sir, after completing my graduation, I started preparing for GATE and PSUs, and I got a All India rank 316 in GATE 221. Sir, I have done my project in design and analysis of microstrip patch antenna. Sir, apart from my technical knowledge, I also have some experience in group management, problem solving. And sir, coming to my hobbies, I like singing, dancing, and sometimes listening to songs also. That's it, sir, from my side. Sir, you are not audible. Okay, Hello. Susma, so you got All India rank 316. Yes, sir. So you can get admission in MTech program in any IIT Yes, using sir. this score. So did you use this score for getting admission in MTech this year? No, sir. Why? So because currently I don't want to join MTech because sir, I want to start my professional career at the earliest and I want to get a job as soon as possible. That is why sir, I'm Okay. trying for PSUs. And suppose you are not selected with HL, then Sir, if I'm not selected in HL, then I'll be highly disappointed. But I'll keep on trying and I'll try to get a job as soon as possible. okay. So will you suppose after joining HL, Yes, sir. we provide you this facility to join MTech, sponsored MTech, which will be sponsored by HL. Yes, sir. Okay, after some time. So would you like to join that MTech program then? Yes, sir, definitely. I'll be happy to join MTech because, sir, in an organization like HL, there will be a lot of large scope if we doing higher studies because HL only don't like do in design and manufacturing of aircrafts, but also, sir, there are a lot of activities going in R&D sector. So, if I'm doing MTech, if my organization allows me, then it will be beneficial for me and also for my company. No, you are saying that you are not interested in MTech right now, okay? Sir, actually, But if we provide you sponsorship, then you are ready. it is not about interest, sir. Mainly, it is about like I don't have choice or, sir, actually, as per now, I need to get a job as soon as possible. That is why, sir, I can't do MTech as it will take 2 more years. So, sir, in that sense, I was saying. But, sir, if I'm getting a chance to do MTech, then definitely I will do as I like studying and obviously, sir, in that sense, I was Okay, saying. so for financial support, if you get financial support from organization, then you can join, right? Yes, sir. Okay. So now you tell me, there were two categories, management training and design training. Yes, sir. So why did you prefer this management training, not design training? Sir, because I am more interested in a profile, like I'm more interested in a kind of job where I can improve both of my technical and non-technical skills. So I think if I'm joining HL as a management trainee, then I'll get exposure of both of them equally. So I can improve both of my technical and non-technical skills at the same time. Okay, can you tell me what difference do you know or do you think maybe there between these two, management training and design training?
Sir, as far as I have heard from my seniors, sir, in design trainee, sir, in management trainee, we can be put in any of the departments, like in production, overall, and maintenance, in design also. But sir, if we are joining HL as a design trainee, sir, there are like high chances that we can be put in design departments. And so I think, sir, in management trainee, there will be wider areas where we can work and explore our like in which knowledge. you can utilize more of your technical knowledge. Sir, I think, sir, in both only. Okay. Now you tell me what are your favorite subjects from your BTech program? Sir, control system, Hmm. communication, analog circuits, and sir, signals and system. Okay. So do you know lead compensator and lag compensator? Yes, sir. Can you draw the location of zero and pole in lead Yes, sir. compensator, lag compensator? Yes, sir. Differentiate between these two. Sir, in terms of location of zero and poles. Yeah. Okay. And what is the main difference between these two? Sir, mainly compensator are the devices which are used to improve the performance of any control system. So, sir, lead compensator is used in a control system to increase the steady state response of a control system whose transient response is. Sorry, sir. I think. Sir, please give me a minute. Sir, lead compensator increases the transient response of a control system which is having a good steady state response, and lag compensator increases the steady state response of a control system which is having a good transient response. So, sir, lead compensator increases the overall bandwidth of a system, and then, sir, it like increases the phase of a system, like it added some phase, so phase margin will be increased, so system stability will be increased, then its damping ratio will increase, sir. The components which are like transients response, which depends on the components, will improves, and similarly at the same time, since stability increasing, so gain of the system will decrease, so steady state error will increase. So, sir, that is why if we are using lead compensator, so we have to use a system which is already having a good steady state response, because it will degrade some steady state response. That is why, sir. Okay, Kailash sir. Hello. Hello. Am I audible, Sushma? Yes, sir. Okay. So right now you were discussing about some responses to the mentor, right? Yes, sir. First of all, tell me what is difference between transient and steady state response? So transient response of a system is the response due to the dynamic behaviors of a system when there is a sudden change in input. What do you mean by the dynamic behavior? Explain this term, dynamic behavior. So dynamic behavior means the specifications of the system are varying with respect to time, and it is not any constant value or fixed value. So this is dynamic behavior. So why dynamic behavior is very important? What information you? Okay, tell me why dynamic performance is important. Sir, because dynamic performance is important. From from transient response, we can get to know how fast our system is moving, or how quick we can get to the stability, and we can reach to the desired value. Apart from that, sir, from a transient response, we get to know about type of response of a system, whether it What do you is. mean by the type of response of the system? So type means, suppose if a control system, suppose if we are applying some methods, say, damping, suppose if we are applying damping to a control system, so we get to know whether it is over damped or under damped or critically damped. So, sir, from there only we can say about what is the type of response of a system from transient अच्छा, मुझे ये response. बताइए, कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका Yes, sir. अनडैम्प्ड केस में इम्पल्स रिस्पॉन्स और यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स बताओ क्या होगा, ग्राफिकली बताइए जल्दी, डू इट फास्ट. Sir, undamped case में impulse response and
अनडैम्प्ड केस में इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, अनडैम्प्ड केस में स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, बताइए मुझे। सिर्फ शेप बताना, आउटपुट शेप क्या होगा। स्टेप रिस्पॉन्स तो ऐसा होगा। अच्छा, और इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा। सर इम्पल्स रिस्पॉन्स साइनोसॉइडल ही लग रहा है। बनाइए ना, हाँ सर। बनाइए, साइनोसॉइडल ही होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ किसी भी सिस्टम के लिए स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। सर स्टेप रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स के बीच में क्या रिलेशन हम्म होता है। हम्म सर स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है हम्म वो इंटीग्रेशन होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स का। तो फिर आप क्या, आपने स्टेप रिस्पॉन्स भी साइन बनाया है और जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो भी साइन होगा क्या। नो सर। फिर बनाइए क्या होगा। कोसाइन हो सकता है सर फिर। कोसाइन हो सकता नहीं है, बताना है क्या होगा। होगा सर, कोसाइन होगा फिर। कोसाइन होगा। ये कौन सा रिस्पॉन्स बनाया आपने भी, बताओ मुझे कॉपी पे। सर ये तो अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए सर स्टेप रिस्पॉन्स बनाया मैंने। बताओ एक बार दोबारा बताना मुझे, अपना फोटो बताइए मुझे। ये आपने बनाया साइन साइन टी बनाया, समथिंग साइन ओमेगा टी बनाया आपने, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक लिखो जरा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, लिखो। अब इसको अनडैम्प्ड केस के लिए लिखो। फिर ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। हाँ, तो अब इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालो, क्या आएगा, 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर आएगा। तो आपको यस सर। लगता है इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन ओमेगा टी होता है, लगता है आपको। नो सर, इम्पल्स रिस्पॉन्स साइनोसॉइडल होगा, बट सॉरी हाँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स साइनोसॉइडल होगा और स्टेप रिस्पॉन्स कुछ अलग होगा, इंटीग्रेशन होगा उसका। इंटीग्रेशन होगा। कंफ्यूज लग रहे हो आप मुझे। यस सर, इंटीग्रेशन ही होगा। देखो, जब आपको बेसिक चीजें पता है, एक वे से आप रिलेशन बता रहे हो कि इट्स अ कॉमन थिंग, ठीक है, कि स्टेप यस सर। रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स आपस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेबल फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। तो जब आपको ये चीज पता है, अगर आप चलो फॉर अ मोमेंट कैपेबल नहीं हो कि आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, ठीक है, बट स्टिल फिर भी इस लॉजिक को लगा के इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक मत करिए ना, जो आप कह रहे हो, यस। ठीक है। यस सर। सॉरी सर। यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट जो है। यस आपका सर। जो अनडैम्प्ड केस में क्या बन जाएगा बताइए, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यस सिंपली सर। इसका इनवर्स निकाल दीजिए, जो इसका इनवर्स आएगा वो आपका क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स बिकॉज होगा। इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। और जो अभी मैंने आपको केस बताया 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ओमेगा एन स्क्वायर, ये कौन सा रिस्पॉन्स होगा, स्टेप रिस्पॉन्स होगा स्टेप उसका। रिस्पॉन्स होगा। यस अच्छा, सर। एक सर्किट बनाइएगा अपनी कॉपी पे, कंट्रोल सिस्टम के लिए आरसी सर्किट बनाइएगा, ठीक है, जिसमें हम जो है आउटपुट कैपेसिटर के क्रॉस ले रहे हैं। ओके सर। बना दिया आपने। यस सर। बताइए मुझे क्या बनाया आपने। आउटपुट कैपेसिटर के क्रॉस ले रहे हैं सर। हाँ, तो कंपोनेंट की वैल्यू R1C1 है, राइट। हाँ सर। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। सर 1/1 प्लस आर सी एस हो जाएगा। इसके आगे एक और स्टेज सेम कैस्केडेशन में लगा दीजिए, कंपोनेंट की वैल्यू डिफरेंट रखिएगा, एक इसके आगे बिल्कुल आइडेंटिकल स्टेज लगा दीजिएगा, दूसरी स्टेज, ओके सर। और कंपोनेंट की वैल्यू R2C2 लीजिएगा, ठीक है। यस सर। अब जो एंटायर नेटवर्क का आउटपुट है वो C2 के क्रॉस है। अब मुझे इस एंटायर नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन बताओ क्या होगा। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा।
क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? पहली स्टेज का निकाल दो, दूसरी स्टेज का निकाल दो। यस सर, यस सर, हम्म, यस सर, कर सकते हैं 1 by मल्टीप्लाई की नहीं कर सकते हैं? yes sir, 1 by 1 plus R1 C1S into 1 by 1 plus R2 C2S. अच्छा, अब एक और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। यही बनाना है जो आपने अभी बनाया है, बस इसके बीच में एक एम्पलीफायर लगा दीजिएगा, ठीक है, जिसका सर गेन 1 है। दोनों जो के आपकी बीच में एक जो एम्पलीफायर। आपकी फर्स्ट स्टेज और दूसरी स्टेज है, इसके बीच में एक ब्लॉक लगा दीजिएगा, कोई भी एक ब्लॉक लिख दीजिएगा, स्क्वायर बॉक्स, उसको एम्पलीफायर लिख दीजिएगा, राइट। ओके सर। उसका गेन आप 1 बना दीजिएगा, ठीक है। गॉट माय ओके पॉइंट? सर, यस सर। अब मुझे बताओ, दोनों केस का ट्रांसफर फंक्शन आइडेंटिकल होगा या डिफरेंट होगा? दोनों सर, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। हाँ, दोनों का आइडेंटिकल होगा या डिफरेंट होगा? और नीचे वाला जो एम्पलीफायर लगाया मैंने, आइसोलेटिंग एम्पलीफायर है, जिसका गेन के है। सर आइडेंटिकल तो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि एम्पलीफायर का गेन 1 है, लेकिन कुछ फेज भी तो होगा सर। चलो फेज तो में मान रहा हूँ, कुछ फेज नहीं दे रहा है। सर लेकिन लोडिंग इफेक्ट भी तो कुछ होगा। तो लोडिंग इफेक्ट कौन से केस में आना चाहिए? पहले केस में आना चाहिए। तो वहां आप कैसे बोले दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो? नीचे वाले में आप दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि नीचे आपने आइसोलेटिंग एम्पलीफायर लगाया है जो दोनों स्टेज को आइसोलेट कर रहा है। ओके, यस सर। तो आप ऊपर वाले के लिए कह रहे हो नो कि दोनों सॉरी का सर, सर्टिफिकेशन नो होगा। सर, नो सर, लोडिंग इफेक्ट अल्टीमेटली आएगा ऊपर वाले में। अल्टीमेटली यू फॉल वेरी ब्यूटीफुल इनटू द ट्रैप है। यस सर। तो सुषमा, ये ज्यादा चीजें देखो, आई फोकस एवरीथिंग ऑन द कंट्रोल सिस्टम, राइट। वो ज्यादा इससे चीजें पूछेंगे, बट यू वर कंफ्यूज्ड। तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मैंने सर सिचुएशन डायरेक्ट अगर ट्रांसफर फंक्शन लिख करके बनाते तो आ जाता है आंसर, बट ऐसे डायरेक्ट तो कैस्केडिंग था डायरेक्ट तो लोडिंग कैस्केडेशन इफेक्ट। आप तभी कर सकते हो जब परफेक्टली आपके पास क्या हुआ, आइसोलेशन हो, ठीक है ना। आप आइसोलेशन। ऐसे लोडिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप निकाल के देख लेना, क्रॉस चेक कर देना। अगर आप इसका डायरेक्टली निकालोगे ट्रांसफर फंक्शन समथिंग डिफरेंट आएगा, और अगर आप वैसे निकालोगे समथिंग डिफरेंट आएगा। हाँ, वी कैन अप्रोक्सीमेट बाय एडजस्टिंग सम कंपोनेंट वैल्यू। वो फिर लोडिंग इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए वैसा कंपोनेंट का वैल्यू एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिवर्स यस सर। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर ये सिचुएशन अराइज हो रहा है तो क्या करेंगे हम। वहां पे एक आइसोलेटिंग एम्पलीफायर लगा देंगे जो परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग करेगा बीच में, जिसका गेन मैंने 1 रखा है, ठीक सब है। बफर वगैरह लगा सकते हैं हाँ, वहां पे। बफर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपका जो मैंने देखा है, आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप बिना सोचे समझे उसका आंसर लिख रहे हो, यस ठीक सर। है। पहले बताना, आपने पहले कुछ पोल जीरो प्लॉट बनाए हैं लीड लैग कंपनसेटर के, बताना यार मुझे पोल जीरो प्लॉट क्या बनाया आपने। सर ये ट्रांसफर बनाया। फंक्शन क्या होता है? लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सर लीड कॉम्पनसेटर का होता है 1 plus टावर्स डिवाइडेड बाई 1 plus अल्फा टावर्स। क्या बताया आपने? 1 plus टाउ एस डिवाइडेड बाई 1 plus अल्फा टावर्स। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस अल्फा टाउ एस अपॉन 1 प्लस टी एस कर दूं तो वो गलत होगा? 1 plus अल्फा टावर्स डिवाइडेड बाई 1 plus। टी एस कर दूं तो गलत होगा, सही होगा? सर सही होगा, वो तो अल्फा एंड टाउ के वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे कि वो क्या है, वो तो कांस्टेंट ही होता है कोई तो हाँ, तो उससे। आपने जो लिखा उसके इसमें अल्फा का वैल्यू क्या है? जो आपने ट्रांसफर फंक्शन लिखा उसमें अल्फा की वैल्यू क्या है? सर लीड कॉम्पनसेटर में अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो हम्म, उस हिसाब तो से लीड सर। कंपनसेटर में क्या डोमिनेटिंग होता है? पोल डोमिनेटिंग होता है, जीरो डोमिनेटिंग होता है? सर जीरो डोमिनेटिंग होता है। तो जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन बताया उसमें तो पोल डोमिनेटिंग आ गया उस हिसाब से, फिर कैसे दोनों सही है? सर वो तो आपका मतलब जो आपने बताया उसमें हम लोग टी लेस देन 1 ले लेंगे। अच्छा, नीचे आपने टी बताया, हम्म, तो सर टी टाइम अगर कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? ओ नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा शायद हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता है सर। तो बताइए कौन सा नहीं, सही है, आप वाला सही है मेरे वाला सही है? सर मेरा वाला सही है। अगर मैं अपने वाले में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दूं तब किसके वाला सही है? आपके क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन देन 1 1 कर दूं, और दोनों केस में टी का वैल्यू सेम रखूं, फिर किसका सही है? इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सर तो आपका फिर जो अल्फा की वैल्यू वो लीड के लिए ही आप ये ट्रांसफर फंक्शन बता रहे हैं कि मतलब 1 प्लस अल्फा टावर्स डिवाइड बाई 1 प्लस टावर्स है अब किसी मैंने ये लीड ट्रांसफर को। फंक्शन बताया और इसमें मैं अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख रहा हूँ।
आपके वाले में अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो किसका सही है, लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन, आपका या मेरा या दोनों का? सर मेरा सही है सर। मेरा क्यों सही नहीं है बताओ? सर क्योंकि लीड कॉम्पनसेटर के लिए सर मतलब जो लोकेशन है जीरो जो है वो क्लोज होना चाहिए पोल से। तो आपके क्वेश्चन में सर अल्फा और टी अगर तो मेरे में भी तो अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पे भी तो 0 ही क्रॉस आ रहा है। हाँ यस सर, दोनों ही सही Then- होगा। देन सर दोनों ही सही है फिर। यू सीम्स कंफ्यूज्ड। तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है? इनका Yes, कोई sir. स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, राइट? इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, ओके? तो जिस एनालिसिस के साथ आप चलोगे, हाँ, वन थिंग इज डोमिनेंस कंसेप्ट दैट विल बी, ये नहीं हो सकता है कि आप बोल रहे जीरो डोमिनेटिंग, मैं बोलूंगा पोल, वो नहीं हो सकता है। डोमिनेंस विल बी ऑलवेज दैट, राइट? बट द Yes, sir. वे इन विच यू रिप्रेजेंट दैट कैन बी एनीथिंग, फाइन? Yes, sir. तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना? और थोड़ा सा सुनना है उसको, इंटरव्यूअर को, व्हाट एक्चुअली इज ट्राइंग टू आस्क, फाइन? Okay, sir. You got my point? That is Yes, the sir. only thing, okay? That is from my Yes. side. Okay, Susma. Hello. हाँ, Susma, your interview was okay. Your sorry, introduction was okay. Okay, but सुषमा, तो इंट्रोडक्शन में देखो आपसे पूछेंगे ना कि एमटेक के लिए मैंने पूछा, आपने कहा कि एमटेक में इंटरेस्ट नहीं है और अभी मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, ठीक है, मेरा Yes, वर्क sir. में इंटरेस्ट है। तो अगर ये आंसर बोलते हो फिर वो पूछते हैं कि आपको क्या हम ऑफर करें एमटेक, तो करने जाओगे? आपने कहा जी हाँ चले जाऊंगी आराम से। तो दो Yes. कॉन्ट्राडिक्शन है वो थोड़े से ना। इसका मतलब आप एमटेक के लिए सिर्फ कंपनी को इसीलिए यूज करना चाहते हो। तो आप उसका आंसर कर सकते हो कि सर अभी राइट नाउ मैं जॉब में जाना चाहती हूँ और Okay, sir. वहां पे काम मतलब पूरा एक्सपोजर अच्छे तरीके से लेके, और जो भी मैं वहां पे लर्न करूंगी मतलब डिफरेंट थिंग्स और वर्क करूंगी, तो अगर इन फ्यूचर मुझे लगता है कि एमटेक से मेरी स्किल्स जो कंपनी से रिलेटेड है मतलब और ज्यादा इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है, तो मैं आगे सोचूंगी। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी फिलहाल में तो मुझे सिर्फ जॉब में ज्वाइन करके काम सीखना है वहां पे, और मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो मैंने एक्चुअल में नॉलेज गेन की है उसको वहां पे यूटिलाइज करना है। और अपने जो मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग जा रही हूँ तो वहां पे मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्निकल चीजों को मैनेज करना, ये सारी एक्टिविटीज को पहले मैं उन पे काम करना चाहती हूँ। सर बाद बट में मतलब अगर सर लगता है अगर और सर मतलब वो बोलेंगे कि सुषमा, लाइक वी आर। सुषमा यस एक सर। वेट अ मिनट, त्यागी सर, जी मैं लीव कर रहा हूँ, मेरा अगला सेशन है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ सुषमा, क्या बोल रहे हो आप? सर जैसे अगर वो बोलेंगे कि वी आर ऑफरिंग यू टू डू एमटेक बट तुम नहीं कर रही हो, तो ऐसा सर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट वे में ना ले सकते हैं कि हम तुम्हें बोल रहे करने के लिए बट फिर भी तुम नहीं कर रही हो, इस हिसाब से भी अगर नहीं, मैं ऐसे बोलूंगी वो हाथ कि। उस टाइम पे ऑफर नहीं करेंगे ना कि अभी तुम्हें पहले एमटेक में हम भेजेंगे। ओके सर। तो ये बोल सकते हो कि सर लेट मी थिंक, मतलब मुझे सोचना पड़ेगा, ओके ठीक है सर, ना? डायरेक्ट हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट ऐसे हाँ, कि ये हाँ। नहीं कि मतलब हाँ मतलब खुशी नहीं जाहिर करनी कि ठीक है, अगर ओके कंपनी मतलब सोचती है तो देखती हूँ, मैं सोचूंगी सर मैंने ऐसा सोचा नहीं, मेरे को तो ये लगे कि मुझे काम ही करना है मतलब अभी। ओके सबको सर। तो एमटेक में भेजेंगे नहीं, नो सर। तो मना ही करना है मतलब एक तरीके से ना। ओके लेटर सर। ऑन अगर वो कहना कि अगर बाद में मुझे महसूस होता है कि भाई एमटेक से और मेरा इंप्रूवमेंट हो सकता है जो कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकता है और कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रही है, तो मैं तब सोच सकती हूँ, बाद में भी नहीं। ओके ठीक सर। है, अभी जॉब चाहिए मुझे, बस ज्वाइन करके काम करना है। यस सर। बाकी चीजें तो ठीक है अपना। और ये जो आंसर सर ने बताए हैं उनको ध्यान देना। तुमने वो प्लॉट तो ठीक किया था कंपेंसेटर का, जो मैंने लोकेशन पूछा था, तो बस उतना ही बताना है। बट जो बाद में डिफरेंस पूछा उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कोई सोचना भी एक्सप्लेन पड़ेगा कर रहे हो तुरंत। हाँ। तो उतना करो कि उनको समझ में आ जाए बस कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके, लाइक लीड एंड लैग का जो डिफरेंस था बहुत हाँ ज्यादा हाँ, एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है मतलब सर ना। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज को? आप मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लीड कंपेंसेटर से क्या होता है, लैग से क्या होता है, दोनों की डिजाइन में क्या डिफरेंस है, ओके ये बता दो, ठीक है नहीं? सर, जैसे कि लीड जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करता है और लैग जो है वो स्टेडी, बस इतना बता ठीक है, सकते हैं। बनाते बनते कैसे हैं दोनों? लाइक सर्किट उनका। अरेंजमेंट कैसे होता है रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस का, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दो। ओके सर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है ना? ठीक तो है सर। अगर वो इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि हाँ वो और जानना चाहते हैं, उनके चेहरे को रीड करो वहां पे ना,
तो और पॉइंट्स इन ऐड ऑन कर दो। और अगर वो लग रहा है कि मतलब ठीक है बस एनफ, उनको रीड करना है वहां पे बस, तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ। ओके ये नहीं सर। कि वो सामने वाला बैठा हुआ कि हाँ ठीक है और तुम बताते जा रहे हो, उतना लंबे उसमें नहीं जाना है। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है। किसी आंसर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है टीचर वो, तो उनको फिर अच्छे तरीके से समझाओ। नहीं लगता सर तो अपनी चेंज करो, अपनी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है वहां पे अपनी। सर अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो फिर वो सामने से क्रॉस क्वेश्चन कुछ करेंगे, मतलब बिल्कुल ऐसा? करेंगे, और फेशियल एक्सप्रेशन से भी दिख जाएगा। ओके सर। सर एक थोड़ा मुझे पूछना था कुछ। सर एक्चुअली जो मेरा समर इंटर्नशिप था सर, वो मैंने कुछ खास किया नहीं है वैसा। तो सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने अच्छे से किया है, मतलब खुद से सारा काम वगैरह भी किया था कॉलेज में। बट सर इंटर्नशिप मैंने नहीं किया था, तो सर उसके रिलेटेड सर अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह वो लोग इंटर्नशिप पूछते की कोई जरूरी थोड़ी होता है इंटर्नशिप करना। हैं। कितने हाँ महीने सर। की थी इंटर्नशिप? इंटर्नशिप सर मैंने किया ही नहीं था, हमारे कॉलेज में कुछ वैसा उसका बोल देना कि था तो। वहाँ नहीं अलाउ नहीं था। सर मार्कशीट में बट है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके कुछ अच्छा ऐसा। ट्रेनिंग तो, हाँ ट्रेनिंग का ज्यादा पूछते नहीं है वैसे। सर ट्रेनिंग मुझे के क्या लिए बहुत प्रिपेयर ज्यादा करना नहीं चाहिए, जाते। कोई टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए सर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर सर कोई मैंने जो खुद उसमें से नहीं किया। मेंशन किया है वो कर लो ना कुछ भी। अच्छा ठीक है सर। जो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लो। बट ट्रेनिंग सर में बहुत ऐसा, ज्यादा जाएंगे नहीं वो। यस सर। सर ऐसा कर सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड ही ट्रेनिंग का भी कुछ जैसे बना के बता सकते हैं कि हाँ कॉलेज बता के थ्रू सकते ही हो। ट्रेनिंग वगैरह कर लिया था मैंने तो उसी फील्ड कोई में। कंपनी का नाम तो पता होना चाहिए ना, यस कहाँ से सर। किया था वो आइडेंटिफाई कर लो, उसके लिए अलग से फिर डिस्कस कर लेना मेरे साथ में।